آرکائیوز کے محفوظ مواد میں تاریخی، ثقافتی، علمی، سماجی، مذہبی، سیاسی، قانونی، معاشرتی اور معاشی اطلاعات شامل ہوتی ہیں۔ آرکائیوز کا شعبہ اور اس سے وابستہ افراد تاریخ کے محافظ ہوتے ہیں۔ ایسی ہی ایک مثال حکومت سندھ کے محکمہ سندھ آرکائیوز کی بھی ہے، جسے سندھ کا پہلا آرکائیوز ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ سندھ آرکائیوز میں مختلف اقسام کی صدیوں پرانی دستاویزات اور نوادرات کا انمول اور نایاب خزانہ موجود ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہیں، بلکہ 200 سال 300 سال پرانے ڈاکومنٹس ہیں۔ ہمارے پاس اس آرکائیوز میں ساری وہ چیزیں موجود ہیں جو ہسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، وہ مختلف شیپس میں ہیں۔ ورکنگ ہے، ڈپارٹمنٹ کی نوٹیفیکیشنز ہیں، کمیشن ریکارڈ ہے، تقاریر ہیں قائد اعظم کی، تو ہم نے وہ محفوظ کرتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ڈپارٹمنٹ بہت اہم ہے۔ ہاں، جو اویلیبل ریکارڈ ہے یا کہیں سے بھی اگر مطلب ڈسٹرکٹ وائز ہم لاتے ہیں تو اس ریکارڈز کو ہم سب سے پہلے اس کی انوینٹری کرتے ہیں، اس کے بعد فوری طور پہ ہم اس کو فیومیگیشن چیمبر میں لے جاتے ہیں۔ یہ سندھ آرکائیو کا آئی ٹی سیکشن ہے اور یہاں پر ہم اپنے ڈاکومنٹس کی، ریئر ڈاکومنٹس کی اسکیننگ کا کام کرتے ہیں۔ ہم نے اب تک ملینز آف پیجز اسکین کیے ہیں۔ آرکائیوز کا یہ ڈیٹا سینٹر ہے جو کہ ہم جتنی بھی ڈیجیٹائز کرتا ہے ہمارا آئی ٹی سیکشن، جو بھی ریسرچرز آتے ہیں یا جو بھی ہمارے وزٹرز آتے ہیں، وہ اوریجنل ڈاکومنٹس کو ٹچ کیے بغیر جو ہے وہ اپلیکیشن کے تھرو جو ہے اس کو ویو کر سکیں۔ ہمارے یہاں ریکارڈ 5 کیٹیگریز میں ہے اور یہ ریکارڈ انتہائی اہمیت کا عامل ہے۔ نایاب ریکارڈ ہمارے پاس 18 سینچری ٹو 1936 کا پڑا ہوا ہے۔ Let's watch a documentary on the working of Sindh Archives Department of Nursing. Tansi Panyatep, I'm the Deputy Consul General of Thailand. This place very interesting and there are so many interesting pictures that I have never seen before in my life. Regarding the documentary, what are your comments and thoughts on it? Really hard work, and I would like to congratulate Pakistan to collect all these historic informations records. Pakistan, Zindabad. My name is Ari Polzi. I'm Consul for Information and Social Cultures of the Indonesian Consul General in Karachi. I think documentary is very much interesting. Also, it reflects the real situations of Pakistani community. I think that's very interesting. Give a lot of explanations about the development around here. ساز ادارے دی امیجز پاکستان پروڈکشن اور پاکستان ہلال احمر سندھ کی جانب سے ماحولیاتی تبدیلی کے موضوع پر سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کسی ایک خطے، ملک یا شہر کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو متاثر کر رہی ہے۔ بڑھتے درجہ حرارت مستقبل میں انسانی بقا کے لیے چیلنج بن سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات انیبا ضمیر شاہ سے جانیں۔ دستاویزی فلم ساز ادارے دی امیجز پاکستان پروڈکشن نے عالمی فلاحی ادارے پاکستان ہلال احمر کے اشتراک سے موسمیاتی تبدیلی کے موضوع پر سیمینار کا اہتمام کیا۔ تقریب میں دی امیجز پاکستان پروڈکشن نے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے تحقیقی دستاویزی فلم بھی دکھائی۔ نام محمد شعیب یار خان ہے۔ میں ایز این اینکر کام کرتا ہوں، لیکن میں بہت خوش ہوں اس بات پر کہ میں اس پروڈکشن ہاؤس کا اور جناب شہزاد صاحب کا میں ایک چھوٹا سا ادنا سا ساتھی ہوں۔ شہزاد شاہ صاحب کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں کہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں، اور ان کی جو کاوشیں ہیں وہ یقیناً میں چاہوں گا ایک دفعہ تالیاں بجا کے آپ سب شہزاد بھائی کے حوالے سے ان کو اپریشیٹ بھی کریں، جنہوں نے اس خوبصورت شام کا انعقاد کیا۔ میرے ساتھ کو ہوسٹ ہوں گی میری
सबा फसाद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दी इमेजेस पाकिस्तान की तरफ से कि आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आए। दी इमेजेस पाकिस्तान इज़ अ वेल नोन एंड वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन who produces international standard documentary films. दी इमेजेस पाकिस्तान के पास ना ही सिर्फ स्किल्ड और प्रोफेशनल टीम मेंबर्स हैं, बल्कि दी इमेजेस पाकिस्तान के पास स्टेट ऑफ द आर्ट और मॉडर्न टाइप्स के इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। दी इमेजेस पाकिस्तान ने, जो कि हमारी कंपनी के CEO हैं सर शहजाद अली शाह के क़यादत में, बेशुमार और बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस की हैं। द इमेजेस पाकिस्तान प्रोडक्शन ये बहुत बड़ा काम है जो ये लोग मिलके कर रहे हैं। चंद दिन पहले ये खबर आई कि पाकिस्तान में मार्च ता मई के एंड तक हीट वेव का इम्कान है और शदीद गर्मी की लहर आ सकती है। गवर्नमेंट का भी माजरत के साथ इसके ऊपर फोकस नहीं है। अगर गवर्नमेंट का फोकस हो तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हम कई घंटों की मीडिया पे दिखा रहे होते हैं उसमें भी कहीं माहौलियात के ऊपर, कहीं इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारी बका के ऊपर बात हो जाए। हमें करना क्या चाहिए? तो डेफिनेटली इसमें एक बात तो ज़ाहिर ये भी है कि हर शख्स को अपनी ज़ात से काम शुरू करना होगा। जिस तरह से द इमेजेस पाकिस्तान ने शुरू किया है, शहजाद साहब ने शुरू किया है, इसी तरह से हमें भी अपनी ज़ात से शुरू करना पड़ेगा। डॉक्टर इकबाल सईद साहब हैं, साइंटिस्ट हैं आप। प्रेजेंटेशन के लिए डॉक्टर इकबाल सईद साहब प्लीज़ तशरीफ लाइए। माय टीचर्स एंड माय सीनियर्स आर हियर। कमोडोर साहब, उमर फारूक साहब, चेयरमैन बार एसोसिएशन, officers of social welfare, respectables from the press and the media, all of you to be here. I will just submit a presentation, a few minutes about the urban heat island effect. आपको बताया गया 2-3 दिन पहले अखबारों में कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट सिंध में बल्कि पाकिस्तान एक्सपीरियंस करने वाला है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्कों में ये फिनोमिना है। रेड क्रिसेंट के सेक्रेटरी पाकिस्तान है जनाब कमर वसीम साहब, उनको मैं मदऊ करूंगा। और सबसे पहले तो ज़ाहिर है शहजाद साहब ने जो ये बेड़ा उठाया है क्लाइमेट चेंज का, और रेड क्रिसेंट या रेड क्रॉस का ताल्लुक उससे यूँ निकलता है कि हम लोग बहुत अरसे से इसके ऊपर काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। वो क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट वालों का मसला नहीं है, पहले तो ये क्लियर कर लें। ये मेरा, आपका और हमारे बच्चों का मसला है और आने वाली जनरेशन्स का मसला है। तो वी नीड टू ओन दिस। हीट स्ट्रोक जो है, जब आपका अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके सेहत पे क्या असर पड़ता है। और हीट एग्जॉशन वो है कि आपके बॉडी से जब प्रेशर और आपके बॉडी से जब फ्लूइड निकलता है, वो आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सडनली कोलैप्स करता है। सैयद उबैदुल्लाह कमोडोर डिफेंस एंड शिपिंग एनालिस्ट हैं और हमसे 2 अल्फाज कहें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। जनाब शहजाद अली शाह साहब और उनकी टीम, और इसी तरह हिलाल अहमर और उनकी टीम, मैं आप दोनों हज़रात का और आप दोनों ऑर्गेनाइजेशन का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ मदऊ किया और मौका दिया कि कुछ बातें की जाएँ क्लाइमेट चेंज पे। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो टीम दी इमेज पाकिस्तान को कि उन्होंने बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बनाई, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी दिस इवनिंग। क्लाइमेट चेंज जो है, इट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन दिस ग्लोबल वर्ल्ड। हम खाएंगे पिएंगे फिर चले जाएंगे, तो ये कचरा हम कहाँ फेंकेंगे? सबसे जो मेन इशू है वो कचरा है। बाकी जो चीज़ें हैं ना, जिस तरह साइंसदान साहब बता रहे हैं और लोग बता रहे हैं, वो ग्लोबली चीज़ें हैं। उसको करने के लिए हमें वक्त दरकार होगा। बदलते हुए शदीद मौसम, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती हुई माहौलियाती आलूगी के खौफनाक असरार, कुर्राह अर्ज़ खतरे के आखिरी निशान। सारे एनवायरमेंटल पैरामीटर जो हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट को बढ़ा रहे हैं। बढ़ता हुआ ज़मीनी टेम्परेचर जो अल्टीमेटली हमें जला के रख देगा।
साउथ एशिया में जो 8 ममालिक हैं, आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि 750 मिलियन ऐसे लोग हैं कि जो मौसमियाती तब्दीली से किसी न किसी अंदाज में मुतासर हो रहे हैं। प्लांटेशन ना करने की वजह से हमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन तमाम चीज़ों के प्रॉब्लम्स आजकल हो रहे हैं। हमारे पास जहाज़ आते हैं जो तिजारत के लिए आते हैं, तो वो बहुत सारा वेस्ट होता है जिसमें ऑयल वेस्ट जो कि आके यहाँ पे वो गिराते हैं, जिससे हमारी समुद्री हयात है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। अहले ज़मीं ना हुए बेदार और ना बदली अपनी रविश, तो फिर ना मिलेगी राह फरार और ना छपने को जाए करार। हमें खुद से अपने आप को बचाना है, क्योंकि हमारा फ्यूचर, हमारे आने वाली जनरेशन्स का फ्यूचर जो है वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज ऐसा मसला है कि जिसके लिए आपके पास वक्त ख़त्म हो गया। आपको जो कुछ भी करना है वो आज से और अभी से शुरू करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया की बड़ी आबादी डायबिटीज के मर्ज से शदीद मुतासिर। डायबिटीज है क्या और कैसे एक जीते जागते इंसान का खामोशी से शिकार करता है? 4-5 साल तक टाइप 2 डायबिटिक बदन में छुपी रहती है, मरीज को पता तक नहीं होता। शुगर एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। शायद बहुत सारे लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता कि ये अंदर अंदर आपके तमाम सिस्टम को खा रही होती है। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। मैं शहजाद अली शाह साहब का द इमेजेस ऑफ पाकिस्तान की पूरी टीम का इंतहाई दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। कि डायबिटीज़ की वजह से हमारी आँखें, हमारे असाब और हमारे गुर्दे तीनों बैक वक्त डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। अगर आप लापरवाही का मुजाहरा करते हैं तो लापरवाही का मुजाहरा करने से कॉम्प्लिकेशन का खतरा बढ़ जाता है। तर्ज़ ज़िंदगी और ख़ुराक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस वक्त जो है ना आपके जो सेहत का सबसे बड़ा सतून ये है। तिब्बे यूनानी यानी हिकमत, क्योंकि कुदरती इलाज की अलमबरदार है। अगर हमारे जिस्म के अंदर कोई बिगाड़ पैदा हो जाए तो उस बिगाड़ को दूर करने के लिए हमें कुदरती अज्जा या कुदरती अद्विया जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। Urban population has been doubled in last 40 years. This is why the world is experiencing floods, rains, heat waves, and etc. The human intervention in nature in form of deforestation, ozone depletion, and extension of greenery has led to the rising sea levels and other alarming environmental risks. आज की जो हमारी ज़िंदगी माहौलियाती तब्दीलियों के साथ जो चैलेंजेस और जो भी हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं, अगर हमने उनका कुछ नहीं किया तो आने वाली नस्लों के साथ जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसको हम पायलट कर रहे हैं। ये है अर्बन एक्शन किट। The Urban Action Kit is a specially designed kit to increase communities' contribution in strengthening urban resilience systems. This is a DIY kit which is simple, low cost, and doesn't require extra skills, network, or funds. रेड क्रिसेंट का जो प्रोग्राम हो रहा है इसके अंदर आप अर्बन जो इश्यूज हैं उसको उजागर करना चाह रहे हैं। हॉल के अंदर जो कार्टूनिस्ट को हायर करके और ये अपना एक मतलब कह रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से, तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है और उसको और ज़्यादा हम प्रमोट करना चाहिए। हम जो है वो डीप में जाकर जो हमारे अर्बन इश्यूज हैं हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं। जर्मन रेड क्रॉस और सिंध रेड क्रिसेंट इन दोनों चीज़ों को मुश्तरका जो ये कर रहे हैं इनको हम बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। जर्मन रेड क्रॉस एंड सिंध रेड क्रिसेंट एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी कैंपेन चलनी चाहिए एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस। सर ये स्टॉप लाइन से पहले रुका करें गाड़ी, ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है पैदल चलने वालों का, के ना उनको दें काइंडली टाइप के, इसमें कुछ उसके रूल्स वगैरह भी लिखे हैं। Beach cleaning is a very helpful way to create awareness about marine issues and the dangerous impacts of the pollution caused by humans. It affects the human life and aquatic life adversely.
For this reason, beach cleaning activity was conducted in an assistance of university students. जो भी कचरा हम फैला रहे हैं, that means कि वो climate change को worse करता जा रहा है. हमने ये कचरा खुद ही फैलाया है और ये कचरा हमें ही नुकसान दे रहा है. तामीरी एक्टिविटी अगर हम इस तरह करते रहेंगे तो सी लाइफ और हमारा जो एनवायरनमेंट है हम इसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे. आगाही और मालूमाती दस्तावेजी फिल्म देखिए सिर्फ दी इमेजेस पाकिस्तान प्रोडक्शंस पर.